غور سے سنو، ہماری دنیا دارالاسباب ہے۔ ایک بندے نے پہلے پوچھا تھا کہ سبب مسبب کیا ہے، تو میں نے بتلایا تھا کہ سبب کے معنی کسی چیز تک پہنچنے کا ذریعہ، جیسے پانی تک، کنویں میں جو پانی ہے اس تک پہنچنے کا ذریعہ ڈول رسی ہے، لہذا ڈول رسی سبب ہے۔ فرعون نے حامان سے کہا تھا کہ میرے لیے پکی اینٹوں کا ایک محل بنا تاکہ میں اس پر چڑھ کر کے آسمان کی راہوں تک پہنچ جاؤں۔ آسمان پر چڑھنے کے لیے اس نے راہیں ڈھونڈی تھی، اسباب السماوات۔ تو یہ تو ہے سبب پہنچنے کا، اور جس چیز تک پہنچتے ہیں وہ ہے مسبب، یہ اسم مفعول ہے۔ اور دوسرا لفظ ہے مسبب، یہ اسم فاعل ہے۔ مسبب اللہ تعالیٰ ہے، یعنی ذریعے کو ذریعہ بنانا یہ اللہ کا کام ہے۔ جیسے روٹی سے پیٹ بھرتا ہے، تو یہ بات روٹی میں یہ خاصیت اللہ نے رکھی ہے۔ آگ کاغذ کو جلاتی ہے، تو آگ میں جلانے کی خاصیت اللہ نے رکھی ہے۔ پانی بجھاتا ہے، تو پانی میں بجھانے کی خاصیت اللہ نے رکھی ہے۔ تو مسبب اللہ ہے، اور مسبب یہ پیٹ شکم سیر ہو جانا، کاغذ کو جلا دینا، تو یہ مسبب اور مسبب میں فرق کرنا ضروری ہے، لوگ فرق نہیں کرتے۔ اسی طرح سے معجزہ جیم کے زیر کے ساتھ ہے، معجزہ کی اسم فاعل واحد مؤنث ہے، یعنی عاجز کرنے والا، لیکن لوگ جیم کے زبر کے ساتھ معجزہ بولتے ہیں، یہ معجزہ غلط ہے۔ جیسے لوگ خلیفہ کو مجاز کہتے ہیں، یہ مجاز غلط ہے، مجاز تو حقیقت کا مقابل ہوتا ہے۔ یہ تو اجاز اجازتن سے مجاز اسم مفعول ہے۔ بہرحال یہ جو اسباب ہیں، یہ جو دنیا ہے اسباب و مسببات کا مجموعہ ہے۔ یہ مسببات، ان اسباب کو اسباب اللہ نے بنایا، تو اللہ مسبب ہیں، اور یہ اسباب سے جو چیز پیدا ہوگی وہ مسبب ہے۔ تو یہ دنیا اسباب و مسببات کا مجموعہ ہے۔ یہاں ہر چیز سبب کے تحت میں وجود میں آتی ہے، یہ تعبیر ٹھیک نہیں۔ یہاں ہر چیز سبب کے تحت میں وجود میں آتی ہے نہیں، بلکہ اس دنیا میں جتنی چیزیں وجود میں آتی ہیں ان کا کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے۔ یہ اسباب و مسببات زنجیر ہے جس میں جکڑے ہوئے ہیں۔ اس دنیا کی ہر چیز سبب اور مسبب کی زنجیر میں جکڑی ہوئی ہے۔ اسباب کے تحت وجود میں آتی ہے نہیں، اللہ کے حکم سے وجود میں آتی ہے۔ مسبب الاسباب تو اللہ ہے، ان اسباب میں یہ جو مسبب کو پیدا ہونا ہے یہ تاثیر اللہ کی رکھی ہوئی ہے۔ تو کیا معجزات و کرامات بھی اسباب کے تحت کے وجود میں آتے ہیں؟ یعنی یہ جو کرامتیں ہیں اور معجزات ہیں ان کے بھی اسباب ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ ہیں اسباب ہیں، تمام معجزات کے بھی اسباب ہیں۔ اور پہلے میں نے بتایا تھا کہ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کی ایک عربی میں کتاب ہے تعویل الاحادیث، اور اس کا اردو میں ترجمہ ہوا ہے۔ اس میں معجزات کے اسباب بیان کیے ہیں کہ فلاں معجزہ اس سبب سے وجود میں آیا ہے۔ پھر کتابوں میں، علم کلام کی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ یہ کرامت ہے اور یہ معجزات خرق عادت ہیں، یعنی عادت کو پھاڑنا ہے۔ عادت کو پھاڑنا ہے یعنی عام طور پر جو اسباب ہوتے ہیں جن سے مسببات وجود میں آتے ہیں ایسا نہیں ہے، کوئی دوسرا سبب ہوتا ہے۔ میں مثال دوں، ایک 10 آدمی ہیں، ان 10 آدمیوں کے لیے 2 روٹیوں سے پیٹ بھر جائے، نہیں بھرتا ہے۔ 2 روٹیوں سے ایک آدمی کا پیٹ بھرتا ہے، 10 آدمیوں کا نہیں پیٹ بھرتا ہے۔ لیکن کسی بزرگ کی کرامت سے یا کسی نبی کے معجزے سے 2 روٹیوں سے 10 آدمیوں کے نہیں 30 آدمیوں کے پیٹ بھر سکتا ہے۔ ایک حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فاقہ ہے، فجر کے بعد حضور مجلس ہو رہی ہے، تشریف فرما ہے، اور جب کئی دن کا فاقہ ہو تو بولنے میں اس کا اثر پڑتا ہے۔ تو حضرت ابو طلحہ نے محسوس کیا کہ حضور کو فاقہ ہے، بھوکے ہیں اور بولنے میں اثر پڑ رہا ہے، تو گھر تشریف
उठ करके मजलिस से घर गए और जाकर बीवी से उम्मे सुलेम से कहा कि हुजूर आज मैंने देखा कि हुजूर को फाका है तो कुछ खाने को है। तो उम्मे सुलेम ने कहा कि रात की बची हुई 2-3 रोटियां हैं। तो हजरत अबू तलहा ने कहा कि ये रोटियां भेजो हुजूर को। तो उम्मे सुलेम ने एक ओढ़नी में वो रोटियां बांध कर हजरत अनस बच्चे थे उनके गले में एक किनारा बांधा लपेटा और एक हाथ में दिया ताकि बच्चा गिरा न दे और कहा जा हुजूर को देख रहा। वो बच्चा हजरत अनस आए, आकर खड़े हुए, हुजूर ने देखा और पूछा कि अबू तलहा ने भेजा है? तो उनका जी हाँ। खाना लेकर भेजा है कि जी हाँ। तो हुजूर ने फरमाया घर जाओ, हम वहीं आ रहे हैं खाना खाने। अब वो वापस हो गए और हुजूर ने सारे बैठे हुए लोगों से कहा कि भाई चलो अबू तलहा क्या खाना है, खाने के लिए चलो। उन्होंने घर जाकर कहा कि हुजूर तो सारा मजमा लेकर आ रहे हैं। तो वो बहुत परेशान हुए और उन्होंने बीवी से कहा कि उम्मे सुलेम हुजूर तो सबको लेकर आ रहे हैं और हमारे पास तो वही इतने ही 2-3 रोटियां हैं। तो उम्मे सुलेम का ईमान देखो, उन्होंने कहा कि हमने कहाँ बुलाया है, हुजूर सबको लेकर आ रहे हैं और हमारे पास जितना खाना है हम पेश कर देंगे और जिनको लेकर आ रहे हैं तो हुजूर लेकर आए हैं, हमने थोड़ा बुलाया उनको। खैर हुजूर तशरीफ ले आए सबके साथ और आकर फरमाया कि उम्मे सुलेम तुम्हारी जो रोटियां हैं उसको चूर दो। चूर दिया। फिर कुप्पी लाए, उसमें घी था तो फरमाया कि इस पर घी डाल दो, सारा घी डाल दिया। फरमाया इसको मल दो, मलीदा बना दो, बना दिया। बड़े लकड़ी के कटोरे में ये सब मलीदा बन गया 2-3 रोटियों का। फिर हुजूर ने फरमाया कि 10 आदमियों को बुलाओ। वो आए, उन्होंने खाया, पेट भर करके चले गए। फिर दूसरे 10 आए, उन्होंने पेट भर के खाया। फिर तीसरे 10 आए, उन्होंने पेट भर के खाया। फिर भी उसे खाना बचा रहा। फिर घर वालों ने और हुजूर ने खाया। तो 2 रोटियों से 3 रोटियों से तो 30 आदमियों का खाना भर जाता है। तो आदतन तो नहीं भरता, फिर ये कैसे पेट भर गया 30 आदमियों का। हजरत शाह वली अल्लाह साहब ने लिखा कि आलम मिसाल में खाने में बरकत हुई और खाने में इजाफा होता चला गया और लुकमा उठाने वाला उठाता है उतना ही नया पैदा हो जाता है, आलम मिसाल में पैदा हो जाता है। और आलम मिसाल में कैसे पैदा होता है उसका भी जिक्र एक हदीस में आया है। एक मर्तबा कुछ मेहमान आए हुए और तरीका ये था कि जिसके घर जितने की गुंजाइश है उतने मेहमान अपने साथ ले जाओ। अगर एक का खाना है तो एक मेहमान ले जाओ, तो 2 मिलकर खाना खा लीजिए। 2 का खाना है तो 1 ले जाओ ताकि 3 मिलकर खाना खा लो। उस दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर 10 मेहमान ले गए और हजरत अबू बकर सिद्दीक ने 3 मेहमान अपने घर भेजे और खुद नहीं गए। मगरिब के अरब में खाने के 2 टाइम थे, नाश्ता फजर में चाय नाश्ता कुछ नहीं होता था। पहला खाना 11 बजे खाता था, ये गदा कहलाता था, और दूसरा खाना मगरिब के बाद खाया जाता था, वो अशा कहलाता था। बस 2 ही खाने होते थे। तो हजरत अबू बकर को जरूरत थी तो वो रुके रहे और उन्होंने हुजूर के साथ खाना खाया। मेहमान अबू बकर के घर गए, घर में लोगों ने, घर वालों ने खाना पेश किया तो उन्होंने कहा कि नहीं, जब हम हजरत अबू बकर आएंगे तो उनके साथ खाएंगे, अकेले नहीं खाएंगे। वो बैठे रहे। यहाँ हुजूर ने खाना खा लिया, फिर ईशा की नमाज पढ़ी। ईशा की नमाज के बाद भी रुके, काफी देर के बाद घर गए तो अभी मेहमान बैठे, उन्होंने खाना ही नहीं खाया। तो हजरत बहुत गुस्से हो गए कि तुमने अब तक खाना नहीं खिलाया। तो घर वालों ने कहा कि हमने खाना तो पेश किया था, मगर इन्होंने तो कहा कि हजरत आएंगे तब हम खाएंगे। तो हजरत को गुस्सा आया तो हजरत ने गुस्से में कसम खा ली कि मैं खाना नहीं खाऊंगा आज। तो उन मेहमानों ने भी कसम खा ली कि हम भी खाना नहीं खाएंगे। अब सब सारों ने कसम खा ली। तो जब मेहमानों ने कसम खा ली तो हजरत अबू बकर ढीले पड़े और अपने कहा खाना लाओ मैं खाता हूँ। देखो कोई कसम खा ले
फिर कसम खाने के बाद में अगर ये समझ में आए कि मैंने नामुनासिब कसम खाई, इस कसम पर मुझे बरकरार नहीं रहना चाहिए, तो कसम तोड़ दो, उसका कफारा दो। तो हजरत अबू बकर ने कसम तोड़ दी, क्योंकि हजरत अबू बकर नहीं खाएंगे तो मेहमान भी नहीं खाएंगे, और ये नामुनासिब बात है। तो मेहमानों को खिलाने के लिए उन्होंने कसम तोड़, और कसम तोड़ दी, उसका कफारा दे देंगे। बहरा कसम तोड़ दी। अब मेहमान ये तालिब इल्म है, मेहमान हैं, अबू बकर हैं, हजरत उनके लड़के अब्दुर्रहमान हैं, और दूसरे घर वाले हैं। अरब में हिजाब पर्दा नाजिल होने से पहले घर के अफराद, औरतें मर्द सब एक साथ खाते थे, मेहमान और घर की औरतें सब मिलकर खाते थे। ये तो जब पर्दा नाजिल हुआ तब औरतें पर्दे में खाने लगी, और महारिम के साथ तो घर की औरतें महारिम एक साथ खाएंगे, भाई बहन वगैरह मिलकर साथ में खाएंगे। तो हजरत की अहलिया उम्मे रूमान भी खाने में है, तो खाना खा रहे हैं, तो जितना खाते हैं खाना बढ़ता है, जितना खाते हैं खाना बढ़ता है। तो हजरत अबू बकर ने कहा कि ऐ बिन्ते फारिस, तू देखती नहीं है कि खाना तो कम होने के बजाय बढ़ता जा रहा। तो बीवी ने कहा कि पहले से तिगना हो गया खाना। लाला साहब ने वो खा लिया, और खाना तो वैसा का वैसा ही है। तो फिर वो खाना हुजूर के हदिया भेज दिए। तो हुजूर यहाँ तो सारे मगरिब खा चुके थे, तो खाना वहाँ रखा रहा। दूसरे दिन कुछ एक वफ्द आया था एक कबीले का, तो उन वफ्दों को ये खिलाया। तो अब ये खाना थाल में खाना है, अब सब बैठ करके लुकमे ले लेकर खा रहे हैं, खाना बढ़ रहा है। ये आलम मिसाल में से मिसाली तौर पर खाना बढ़ता जाता है। ये भी एक सबब है। तो ऐसा पानी जो बढ़ता है, ऐसा भी पानी भी आलम मिसाल में बढ़ता है, खाना बढ़ता है वो भी आलम मिसाल में बढ़ता है। बहरहाल ये एक अंदर बातिनी सबब होता है, गहरा सबब होता है जो नजर नहीं आता। बस खर्क आदत का मतलब ये है कि जो जाहिरी सबब जिससे आमतौर पर चीजें मुसब्बबात वजूद में आते हैं, वो सबब तो नहीं होता है, लेकिन अंदर दूसरा सबब होता है जो हर एक को नजर नहीं आता है। बस शाह वलीउल्लाह साहब अलैहि रहमा कहते हैं, और उनका दावा है, बाकी आमतौर पर उलमा नहीं कहते। शाह साहब ये फरमाते हैं कि जितने मौजिज़ात और करामात हैं, ये भी सब असबाब के जरिए से वजूद में आते हैं, और उससे असबाब खफिया होते हैं। वो समझने वाले समझते हैं, कोई दूसरा नहीं समझता। एक मिसाल दूं मैं, हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम बगैर बाप के पैदा हुए, सिर्फ माँ के नुतफे से पैदा हो गए। कैसे पैदा हो गए? इसलिए पैदा हो गए कि मर्द के नुतफे में जुर्सू में होते हैं, और औरत के नुतफे में खलीये होते हैं। ये जुर्सू में खलीये में जाते हैं तो बच्चा का अमल ठहरता है। तो अल्लाह ताला की कुदरत है कि वो सिर्फ औरत के नुतफे के अंदर जुर्सू में खलीये दोनों पैदा कर दें। तो अल्लाह की कुदरत के लिए क्या चीज मुश्किल है? अल्लाह तो आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने पैदा किया था, वहाँ कोई नुतफा नहीं था, मिट्टी से पैदा किया और उसमें रूह फूंक दी तो आदम अलैहिस्सलाम जिंदा हो गए। तो कुरान करीम में है कि इन्ना मसला ईसा इंदल्लाह का मसल आदम, ईसा अलैहिस्सलाम का मामला अल्लाह के नजदीक ऐसा है जैसा कि आदम अलैहिस्सलाम का मामला है। तो अल्लाह ताला मर्द और औरत के मोहताज नहीं है कि मर्द के नुस्खे में जुर्सू में हो और औरत के नुस्खे में खलीये हो और वो दोनों रहने मादर में मिले, ऐसा जरूरी नहीं है। एक ही फर्द के औरत के ही मादे के अंदर जुर्सू में खलीये दोनों हो तो ऐसा हो सकता है। ये एक दूसरा सबब खफी पैदा हो गया। बहरहाल इस तरीके से तमाम मौजिज़ात और करामात के भी असबाब होते हैं। ये हजरत शाह साहब की राय है। आम और उलमा तो ये कहते हैं कि खर्क आदत होता है, और खर्क आदत का मतलब है कि जाहिरी सबब जो आमतौर पर होता है वो नहीं होता है, बल्कि अंदर कोई दूसरा बातिनी सबब पैदा होता है। उसके बाद मसला है कि अगर कोई औरत हाफिज कुरान हो और वो अपने घर में औरतों की इमामत करना चाहे तो कर सकती है? नहीं कर सकती, मकरूह है। अगर कोई औरत हाफिजा है तो घर में औरतों की इमामत करना चाहे तो औरतों की इमामत औरतों का घर में किसी एक घर के अंदर
लॉबी में इकट्ठा होना ये भी मकरूह है, और घर की औरतें हों तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन महल्ले की सारी औरतें इकट्ठा हो जाए तो ये भी मकरूह है। और औरत अगर इमामत करे तो औरत की इमामत तो मकरूह है ही, मगर ये कि वो हाफिजा है, तो हाफिजा है तो वो पीछे एक सामया रखे, वो भी हाफिजा होनी चाहिए, क्योंकि हाफिज को तन्हा नहीं पढ़ना चाहिए। कुरान करीम में मुतशाबिहात हैं, कितना भी पक्का हाफिज हो, और जो जितना ज्यादा पक्का हाफिज है उसको ज्यादा मुशाबे लगेगा, और जहाँ पक्का आएगा वहीं गड़बड़ हो जाएगी, जरा जहन हटा कि कहीं से कहीं पहुंच जाता है। इसलिए पीछे पक्का सामे चाहिए, पक्का सामे के बगैर हाफिज को इमामत नहीं करनी चाहिए। लिहाजा औरत को भी अगर हाफिजा है तो उसको पारा सुनाना है, और सुनाने के लिए पीछे एक हाफिजा चाहिए। मैं मिसाल दूं, मेरे यहाँ जब मेरे घर में से जिंदा थी तो वो हाफिजा थी, उन्होंने मेरे पास हिफ्ज किया था, फिर उन्होंने अपनी 2 लड़कियों को भी हिफ्ज करवाया था, 2 बहुओं को भी हिफ्ज करवाया था। तो जब रमजान आता था तो मामूल ये होता था कि मगरिब के बाद में 2 खड़ी होंगी, दोनों हाफिजा हैं, एक अपना पूरा पारा सुनाएगा, आधा पारा नहीं पूरा पारा सुनाएगी, एक सुनेगी अव्वाबिन में, और फिर यही दोनों तहज्जुद में खड़ी होंगी, जिसने सुना है वो सुनाएगी और दूसरी सुनेगी। तो इस तरह से 2-2 का निजाम बनता था। बस यहाँ तक की तो गुंजाइश है, पारा तो उसको पहला सुनाना है, और आधा पारा नहीं सुनाना, पूरा सुनाना है, और हर साल सुनाना है, और सुनने वाली भी हाफिजा होनी चाहिए, वो भी एक होनी चाहिए, एक से ज्यादा नहीं। अच्छा, एक से ज्यादा अगर 2 हाफिजा हैं, सामया हैं, कमजोर हैं सुनने में तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन जो गैर हाफिज हैं वो अपनी तनहा नमाज तरावी की पढ़ेंगे, हाफिजा के पीछे नहीं पढ़ेंगे। उसके बाद मसला है कि सिक्योरिटी डिपॉजिट का क्या हुक्म है। बॉम्बे शहर के लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट का हुक्म एक ही है, बॉम्बे शहर के लिए कोई अलग नहीं है। सिक्योरिटी डिपॉजिट क्या है? एक तो पहले पगड़ी थी, पगड़ी को मुफ्तियों ने कहा ये जायज नहीं है, एक मकान किराए पर दिया और या दुकान किराए पर दी और 5-10 लाख रुपए ले लिए और उसको इस्तेमाल करने लगे और किराया कम कर दिया, तो ये तो कुल्लो कर्दिन जर्रा रिबन हुआ, कुल्लो कर्दिन जर्रा नफन हुआ रिब हो गया, वो नाजायज है। तो फिर अब लोगों ने उसकी एक जायज शक्ल निकाली है, वो ये है कि दुकान का किराया जो है वो साल का या 2 साल का किराया एडवांस ले लो, किराया कम नहीं। मसलन मकान का किराया 25,000 है, तो 1 साल के या 2 साल का किराया एडवांस ले लो और वो लेकर के इस्तेमाल करेगा, 2 साल तक किराया नहीं मांगेगा। तो ये एडवांस किराया ले लिया दुकान का या मकान का, ये उसके पगड़ी के जगह पर जायज शक्ल आई है। इसके अलावा एक दूसरी सूरत है, मकान या दुकान, मकान किराए पर दिया, उस मकान में किराएदार नुकसान करे कोई या किराया बाकी छोड़कर चला जाए और किराया न दे, तो सिक्योरिटी के लिए, हिफाजत के लिए एक रकम ले ली जाती है, 1 लाख रुपए ले लिए कि जिस दिन तुम मकान छोड़ोगे उस दिन तो अगर मकान में कोई नुकसान नहीं किया तुमने तो ये तुम्हारे 1 लाख रुपए तुम्हें वापस हो जाएंगे, और अगर कोई नुकसान किया है या बिल बाकी है बिजली का या मकान का किराया बाकी है तो काट करके बाकी रकम वापस होगी। सिक्योरिटी का ये मतलब है। ये जो सिक्योरिटी की रकम होती है उसके लिए किताबों में ये लिखा है कि इस रकम का बेअईन ही महफूज रहना जरूरी है, इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन मैं ये नहीं कहता बेअईन ही इसको महफूज रहना, ये मैं नहीं कहता। ये मसला पुराने जमाने का था जबकि दराहिम चांदी के सिक्के होते थे और चांदी के सिक्के मुख्तलिफ होते थे, धात कम चांदी और कम चांदी वाले, ज्यादा चांदी वाले, इसको खोट मिले हुए होते थे। उस वक्त एक आदमी ने 1000 दिरहम दिए और वो दिरहम इस्तेमाल कर लिए। अब वो दिरहम कैसे थे? अच्छे थे, आला दर्जे थे, खोट वाले थे। उस जमाने में ये था कि वही दिरहम अमानत के बेअईन नहीं महफूज रखो, लेकिन आज तो नोटें हैं कागज की, लाशें हैं, कुछ भी नहीं है, लिहाजा उसको महफूज रखने की नोटें बराबर है, इनमें कोई तफावत नहीं है।
البتہ میرے نزدیک یہ شرط ہے کہ جس نے یہ سیکورٹی لی ہے اس کی بینک بیلنس میں یا اس کے گھر میں کیش میں یہ سیکورٹی کے بقدر رقم رہنی چاہیے. اگر اس نے اتنی خرچ کر لی تو پھر یہ جائز نہیں، کیونکہ اینی ٹائم وہ مکان چھوڑ سکتا ہے. دوسرے وقت آپ کو کہاں سے لا کے دو گے؟ اس لیے بینک میں اگر آپ کے پاس بیلنس ہے یا گھر میں سے کیش میں آپ کے پاس رقم ہے جتنی آپ نے سیکیورٹی میں 1,00,000 روپے لیے ہیں، وہ 1,00,000 روپے آپ کے بینک میں ہیں یا گھر میں ہیں، تو پھر کوئی حرج نہیں. پھر اس کا بیائی نہیں، ان نوٹوں کا محفوظ رہنا ضروری نہیں ہے. نوٹوں میں تبدیلی ہو جائے تو کوئی حرج نہیں. جیسے قرض میں تبدیلی ہوتی ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے، تو وہ قرض والا مسئلہ اب آئے گا. لیکن اس کے بیلنس میں یا کیش میں سیکیورٹی کے بقدر رقم ہمیشہ رہنی چاہیے. اس کو بھی خرچ کر لے تو یہ اس امانت کو استعمال کرنا کہلائے گا، اور امانت کا استعمال کرنا جائز نہیں. یہ حکم ہے. سیکیورٹی ڈپازٹ جائز ہے، سیکیورٹی ڈپازٹ جائز ہے. بامبے میں بھی جائز ہے، ہر جگہ بھی جائز ہے. اور مفتی صاحبان یہ کہتے ہیں کہ وہ رقم بے محفوظ رکھنا ضروری ہے، اس کو استعمال نہیں کر سکتے. اس کو میں یہ کہتا ہوں کہ نہیں، وہ رقم بے محفوظ رکھنا ضروری نہیں ہے. اس کے بینک بیلنس میں یا گھر میں کیش میں اتنی رقم اس کی ملکیت میں رہنی چاہیے. اس کے بعد میں پھر ایک عجیب سوال ہے، عدت میں 3 حیض ہی کیوں گزارنا ہوتا ہے؟ عدت میں 3 حیض ہی کیوں گزارنا ہوتا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ عدت میں 3 حیض ہی کیوں گزارنا ہوتا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ بڑا مشکل مسئلہ ہے، اس کو جانا. سب سے پہلے تو یہ سمجھ لو کہ عدت میں 3 حیض کون کہتا ہے 3 حیض؟ یہ تو امام اعظم اور امام احمد رحمہ اللہ کے نزدیک 3 حیض ہیں، اور امام مالک اور امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک تو 3 طہر ہیں. 3 حیض کہاں ہیں؟ ان کے اندر 3 طہر ہیں. ارے تو ان 2 اماموں کے یہاں 3 حیض ہیں، 2 اماموں کے 3 حیض ہیں، 3 طہر ہیں. اصل در ہے کہ اس سلسلے میں جو قرآن پاک میں آیت ہے وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ 3 قُرُوء، تو قروء سے کیا مراد ہے؟ 3 قروء تک مطلقہ عورتیں اپنے آپ کو انتظار میں رکھیں، یہ تربص نہ انتظار کرتی رہیں 3 قروء تک. تو 3 قروء کیا ہیں؟ 2 امام کہتے ہیں، امام ابو حنیفہ اور امام احمد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ 3 قروء 3 حیض ہیں، اور 2 امام کہتے ہیں کہ نہیں، 3 قروء 3 پاکیاں ہیں، 3 طہر ہیں. تو اب کائی کی تو میں وجہ بتاؤں، میں 3 حیض کی وجہ بتاؤں، 3 طہر کی بتاؤں، پھر دوسری ایک بات پوری ہو گئی. یعنی یہ محمل سوال ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ بھئی تو مسئلہ اختلافی ہے. عدت میں یہ تو 3 حیض کہہ رہے ہیں، یہ 3 طہر کہہ رہے ہیں، تو میں کون سی کی وجہ تجھے بتاؤں گا، سمجھاؤں گا. چلو اسے رہنے دو، آگے بڑھو. چلو یہ اس نے کہا کہ عدت میں 3 حیض ہی کیوں؟ عدت میں 3 حیض ہی کہاں ہے؟ وفات کی عدت تو 4 مہینے 10 دن ہے، وہ بھی تو عدت ہے. وفات کی عدت تو 4 مہینے 10 دن ہے، وہ بھی تو عدت ہے. اور اگر وہ حاملہ ہے، چاہے وہ شوہر کا انتقال ہوا ہے یا شوہر نے طلاق دی ہے اور عورت حاملہ ہے، تو اس کی عدت وضع حمل ہے. تو اب عدت کے تو مختلف احکام ہیں، اور تو کہہ رہا کہ 3 حیض ہی کیوں ہے؟ 3 حیض ہی کہاں ہے؟ 4 مہینے 10 دن وفات کی عدت ہے، حاملہ کی عدت وضع حمل ہے، مطلقہ کی عدت میں طہر یا حیض میں اختلاف ہے. چلو چھوڑو اسے، آگے بڑھو. حضرت شاہ ولی اللہ صاحب علیہ الرحمہ نے حجت اللہ البالغہ کے مقدمے میں ایک بات لکھی ہے. دیکھو حجت اللہ البالغہ جو ہے وہ تمام احکام
शरिया के असरार और रुमूज बयान किए, हिकमतें बयान की हैं कि इस हुक्म की क्या हिकमत है, इस हुक्म की क्या हुक्म है। उस किताब में जिसमें पूरे शरीयत की हिकमतें बयान की है, उसके मुकद्दमे में हजरत शाह वली अलैहिर्रहमान ने ये लिखा है कि अहकाम शरइया पर अमल करना हिकमतें जानने पर मौकूफ नहीं है। अहकाम शरइया पर अमल करना हिकमतें जानने पर मौकूफ नहीं है। फिर फरमाया कि अहकाम शरइया की तो सबसे बड़ी हिकमत यह है कि वो अल्लाह रसूल का हुक्म है। बस अल्लाह रसूल का हुक्म है, अब आगे क्या हिकमत जाननी। यहाँ तक तो बात हजरत शाह वलीउल्लाह साहब ने फरमाई। फिर मैंने उसमें बढ़ाई कि इसकी वजह यह है कि जो अल्लाह रसूल के जो अहकाम है, यानी मनसूस अहकाम है कुरान में और हदीस में जो अहकाम है, उनकी रुमूज और असरार और हिकमतें हर मौलवी नहीं समझ सकता। और जब नहीं समझ सकता तो कैसे बताएगा। और अगर मौलवी समझ ले तो हर आमी नहीं समझ सकता, तो वो अगर समझाएगा तो आमी कैसे समझेगा। बस अगर अहकाम शरिया पर अमल करना अहकाम की हिकमत जानने पर मौकूफ होगा तो कबाड़ा हो जाएगा। हर मौलवी हर हुक्म की हिकमत समझ नहीं सकता, और समझ ले तो समझाएगा तो हर आमी मुखातब समझ नहीं सकता, तो फिर कैसे काम चलेगा। मैंने पहले भी एक हदीस बयान की थी। हजरत अबू हुरैरा से तालिब इल्मों ने पूछा कि 3 नमाजें जहरी क्यों हैं और 2 नमाजें खामोश क्यों हैं। तो उन्होंने जवाब दिया कि जो नमाज हुजूर ने हमें जहरन पढ़ाई हम जहरन पढ़ाते हैं, जो सिरन पढ़ाई हम सिरन पढ़ाते हैं। क्यों का जवाब नहीं दिया, वाय का जवाब नहीं दिया। यहाँ सवाल है कि क्या हजरत अबू हुरैरा वजह जानते थे नहीं जानते थे कि 3 सिरन क्यों है, 2 सिरन क्यों है, 3 जहरन क्यों है। इसकी वजह हजरत अबू हुरैरा जानते थे नहीं जानते थे। तो अगर तुम कहो कि हजरत अबू हुरैरा नहीं जानते थे तो हम फिर कहां से जान लेंगे, हम कोई बड़े हजरत अबू हुरैरा से बड़े थोड़े हैं। और अगर तुम ये कहोगे कि हजरत अबू हुरैरा तो जानते थे मगर जो तालिब इल्म पूछ रहे थे उनका लेवल मुस्तवा इल्मी लेवल इतना नहीं था कि वो समझ सके, तो फिर आज हर आम मुसलमान का लेवल वहां से कहां से आ गया कि वो समझ जाए। ये मैंने बढ़ाया है सब। शाह साहब ने तो इतना लिखा है कि अहकाम शरिया पर अमल करना असरार और हिकम और रुमूज जानने पर मौकूफ नहीं है। अहकाम का सबसे बड़ी हिकमत ये है कि अल्लाह रसूल का हुक्म है, लिहाजा उस पर अमल करो। वही हिकमत और मालूम होगा, वाय का जवाब मिलेगा तब हम अमल करेंगे, ये गलत है, इसे गलत है। लिहाजा इस इद्दत के बारे में जो सवाल कर रहा है इसके पीछे पड़ने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि तो मनसूस मसला है। और फिर मनसूस मसले में भी इख्तिलाफ हो गया है। फिर उसके बाद में आखिरी बात ये है कि देखो हर चीज के एक थोड़ा सा हिस्सा तो हम जानते हैं, आखिरी हिस्सा हम नहीं जानते। ऐसा होता है जैसा हम अल्लाह की सिफात हैं, अल्लाह की जो सिफात हैं वो सब बंदों की सिफात के जरिए से बयान की गई हैं, बस हम उनको एक हद तक समझ सकते हैं, आखिर तक नहीं समझ सकते। जैसे अल्लाह ताला ने कायनात पैदा की, आसमान और जमीन पैदा किए 6 दिनों के अंदर, और फिर अल्लाह ताला तख्त शाही पर जमकर बैठे। तो अब तख्त शाही पर जमकर बैठे, इसका एक हद तक हम समझ सकते हैं कि अल्लाह जैसे हुमायूं मर गया तो बाबर तख्त नशीन हुआ, यानी पूरे मुल्क का कंट्रोल बाबर ने संभाला। अल्लाह ने कायनात पैदा करके तख्त शाही पर बैठे, यानी पूरी कायनात का कंट्रोल संभाला। युदब्बिरुल अम्र, पूरी मामलात का इंतजाम अल्लाह कर रहे हैं। मा लकुम मिन दूनिही मिन शफी, अल्लाह के यहाँ कोई सब है। लेकिन अब एक अल्लाह के बैठने की कैफियत क्या है कि अल्लाह अर्श पर कैसे बैठे, इसको नहीं समझ सकता कोई। तो एक हद तक समझ सकते हैं, उससे आगे नहीं समझ सकते। और आगे मिसाल लो, देखो पहली सूरत में हुरूफ मुक़त्ता आता है, अलिफ लाम मीम, हम सब जानते हैं कि हुरूफ हिजा है, अल्फाबेट है, अरबी के अल्फाबेट हैं, और सारे कलेमात इन्हीं अल्फाबेट से बनते हैं। लेकिन फिर अल्फाबेट में
माना के भी फर्क पड़ते हैं। अगर अल्फाबेट बदल जाए तो माना भी बदल जाते हैं, और उसका मदार है इन अल्फाबेट का भी माना है। इसलिए ये अल्फाबेट बदलेंगे। मसलन नफज़ा, नफखा, नफसा, तो नून और फा तो तीनों में रहे और तीसरा लफ्ज बदलता रहा, लिहाजा माना बदल गए। तो ये माना कैसे बदल गए? उन अल्फाबेट का भी माना है। तो अब ये नहीं जानते हम, इतना तो जानते हैं कि इन्हीं हुरूफ हिजा से अलिफ बा ता जो कायदे बगदादी में पढ़ाते हैं उसी से तमाम कलिमात बनते हैं। लेकिन अल्फाबेट बदलने से, ये हुरूफ हिजा बदलने से, अलिफ लाम मीम अलग है, अलिफ लाम रा अलग है, अलिफ लाम मीम सॉद अलग है। ये अल्फाबेट बदल गए तो अलग है। अब वो उन अल्फाबेट के बदलने से क्या माना बदले, वो हम नहीं, वहां तक नहीं पहुंचते, वहां तक हम नहीं पहुंच सकते। तो बहुत सी चीजें हैं कि जिनको एक हद तक हम जानते हैं उससे आगे नहीं हम जानते। अब सुनो, ये जो इद्दत है वो इस्तिबराए रहीम के लिए है, ये जानने के लिए है कि एक औरत जो एक शौहर के यहाँ से खाली हुई, उसकी बच्चा दानी बच्चे में मशगूल नहीं है, उसकी बच्चा दानी खाली है, तो वो दूसरा निकाह करके जाएगा, वहाँ बच्चा होगा तो दूसरे शौहर का बच्चा है। तो बच्चे इस्तिबराए रहीम, बच्चा दानी पाक है, ये जानने के लिए है। यहाँ तक तो हम जानते हैं। दलील इसी आयत में है, वल मुतल्लकात यतरब्बस्न बिअन्फुसिहिन्न सलासत कुरू वला यहिल्लु लहुन्ना अन यक्तुमन मा खलक़ल्लाहु फी अरहामिहिन्ना। इस आयत में इशारा है कि ये बच्चे इस्तिबराए रहीम के लिए ये इद्दत है। लेकिन अब ये कि बच्चा हामिला थी, बच्चा पैदा हो गया तो इस्तिबराए रहीम हो गया, ये तो बात समझ में आती है। लेकिन वफात में 4 महीने 10 दिन और यहाँ 3 तोहर या 3 हैज, ये क्यों? ये हम नहीं समझ सकते। ये जो इसने शरीयत मुकर्रर की है, अल्लाह पाक जल्ला शानहू अम्मना वालू, उन्होंने इस्तिबराए रहीम के लिए मौत पर 4 महीने 10 दिन इद्दत मुकर्रर की है और यहाँ 3 कुरू मुकर्रर किए हैं। फिर फुक़हा में इख्तिलाफ हो गया, कोई कहता 3 है, कोई कहता है 3 तोहर। तो अब आखिर तक की सारी वजह तो हम नहीं बता सकते, वो तो अल्लाह ही जानते हैं। बाकी इब्तिदाई तौर पर हम जानते हैं कि ये इद्दत चाहे वो महीनों से इद्दत हो, चाहे हैज से इद्दत हो, चाहे तोहर से इद्दत हो, ये इस्तिबराए रहीम के लिए है।